हाँ, जय सच्चिदानंद। जय हरे सचिदानंद। जी दादाजी, हरे हो जी दादाजी, તમારા વિના ક્યાંય ખૂટતું નથી. તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી. હરિજી પ્યારાજી, તને હરિ પ્યારાજી, પ્યારાજી, સહારા વિના બીજું ગતું નથી. સહારા વિના બીજ ઉગતું નથી. જગત કુસંગી જ દુઃખ, જગત જગત જ દુઃખ, કેવલ સત્સંગે જ સુખ, કેવલ કેવળ સત્સંગે જ સુખ. દાદાજીનો હસતો મુખ, દાદાજીનું હસતું મુખ, શમની દર્શન થાતા સુખ, સમણે દર્શન થાતા સુખ. હીરા મોતી મહારાજે, હીરા મોતી મારાજી, સમૃદ્ધ સતિયા વિના ડલરું ઠરતું નથી. સમૃદ્ધ સત્યા વિના દલડું ઠરતું નથી. હરે ઓજી દાદાજી, હારી દાદાજી, તમારા વિના ક્યાંય ખૂટતું નથી. તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી. દુનિયાભરમાં લોકો લાગે, દુનિયાભરમાં લુખ્ખું લાગે, સત્સંગ વિના સૂનો લાગે, સત્સંગ વિના સત્સંગ સૂનો લાગે. સૂનું લાગે. ભીડવું દિવસ રાત જાગે, વિરહો દિવસ રાત જાગે, જ્ઞાની ભવની ભાવટ વાંગે, જ્ઞાની ભવની ભાવટ ભાંગે, રોકો અતિક્રમના જે, રોકો અતિક્રમણાજી, આતમ રમના વિના ક્યાંય રૂચતું નથી. આતમ રમણા વિના ક્યાંય રૂચતું નથી. હરે ઓજી દાદાજી, હરે હોજી દાદાજી, હરે ઓજી પ્યારાજી, હરે હરે પ્યારાજી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. તો પાયલ, આપણું ડ્રોઈંગ નું કેટલે આવ્યું? પછી બધું સ્ટોપ થઈ ગયું છે. કેમ? કોન્ટ્રાક્ટ લીધો હતો ને? હા, પણ ખબર નહીં, હમણાં 15-20 દિવસથી બધું બંધ જ છે. આવું ચાલે નહીં હવે. યા જસ્ટ ટાઈડ અપ વિથ અધર થિંગ્સ એવું છે અત્યારે. ના ના, એ તો टाइम काढ़वानो. ओके. હા, ए छोटी किधर गुम हो गई थी? हैं? वो खेलने चले गया. कल क्यों नहीं आए थे आप?
कल खेलने चले गया कर लो। किधर गई थी? खेलने बाहर चले गया था कल। बाहर खाने में, रेस्टोरेंट में? नहीं, खेलने के लिए। ओके ओके, नव कलम बोलो, आप ही अकेले है। ओ, खुशी आ गई। जय सच्चिदानंद खुशी। हैप्पी बर्थडे खुशी। नहीं दादा, आज नहीं है। अच्छा कपड़ा पहन के आते हो, हैप्पी बर्थडे होता है ना। दादा फ्राइडे को है, नेक्स्ट फ्राइडे को, अभी नहीं। क्या है? नेक्स्ट फ्राइडे को है इसका बर्थडे। और तो अभी से कपड़ा शुरू किया पहनने का? नहीं, ऐसे ऐसे वेरी नो, अच्छा लगता है ना, वेरी ओके। श्रेया, नंबर 1। हाँ हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, મને કોઈ પણ દેધારી જીવાત્માનું કિંચિત માત્ર પણ અહમ ન દુભાય ન દુભાવાય કે દુભાવવા પ્રત્યે ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈ પણ દેધારી જીવાત્માનું કિંચિત માત્ર પણ અહમ ન દુભાય એવી સ્યાદવાદ વાણી, સ્યાદવાદ વર્તન, સ્યાદવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. हे दादा भगवान, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનું हे दादा भगवान, મને કોઈ પણ ધર્મનો કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ન દુભે ન દુભાય કે દુભવા પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈ પણ ધર્મનો કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ન દુભે એવી શ્યાદવાદ વાણી, શ્યાદવાદ વર્તન અને શ્યાદવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેધારી ઉપદેશક, સાધુ સાધ્વી, આચાર્યનો અવર્ણવાદ, અપરાધ, અવિનય ન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. हे दादा भगवान, મને કોઈ પણ દેહધારી ઉપદેશક, हे दादा भगवान, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો, हे दादा भगवान, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માની કિંચિત માત્ર પણ અભાવ તિરસ્કાર ન किया जाए, न करवाया जाए કે कर्ता के प्रति न अनुमोदाय એવી પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેધારી જીવાત્મા સાથે ક્યારે પણ કઠોર ભાષા, તંતેલી ભાષા ન બોલાય, ન બોલાવાય કે બોલવા પ્રત્યે ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. કોઈ કઠોર ભાષા, તંતેલી ભાષા બોલે તો મને મૃદુ રુચિ ભાષા બોલવાની પરમ શક્તિ આપો. हे दादा भगवान, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનું સ્ત્રી પુરુષ અગરના પુરુષ ગમે તે લિંગધારી હોય તો તેના સંબંધમાં કિંચિત માત્ર પણ વિષય વિકાર સંબંધી દોષો, इच्छाओं, चेष्टाओं या विचार संबंधी दोषों न किया जाए, न करवाया जाए કે કર્તા કે પ્રતિ ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને નિરંતર નિર્વિકાર રહેવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ રસમાં લુપ્તપણું ન કરાય એવી પરમ શક્તિ આપો. સમરસિક ખોરાક લેવા એવી પરમ શક્તિ આપો. हे दादा भगवान, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો પ્રત્યક્ષ અથવા પરોક્ષ જીવંત અથવા મૃત્યુ પામેલાનો કોઈનો એ કિંચિત માત્ર પણ અવર્ણવાદ, અપરાધ, અવિનય ન किया जाए, न करवाया जाए કે કર્તા કે પ્રતિ ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને જગત કલ્યાણ કરવાનું નિમિત્ત બનવાની પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. શૈલેષ દાદા. શૈલેષ દાદા, અનમ્યુટ કરો. जय सच्चिदानंद शेरसान जी। जय सच्चिदानंद। श्रीमत को बुलाए प्लीज। जय नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोय सव साहुणम,
केशवसाहनम् ऐसो पंचनमुक्कारो ऐसो ऐसो पंचनमकारो पावपड़ासडो स्वभावपरासनो मंगलानं च सौवेसिम मंगलानं मंगलानं च सर्वेषु पद्मं हवै मंगलम। परमं मंगलम्। मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः ओम शिवाय। नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। श्रेया, daily prayer. हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं कभी भी अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोहबत से और कुसंग से कायम दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी न छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र सेवा के लिए करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं हमेशा खुद के साथ और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में विश्वास पात्र, निष्ठावान और शुद्ध बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे ही उत्कृष्ट व्यक्तित्व का मानवी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपने माता पिता की हर बात सुनने की संकल्प लेती हूँ और उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंतांतरिक शक्ति प्रदान करे। जय सच्चिदानंद। चिनाय, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरा दर्शन ऊपर का आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी आप मुझे परम शक्ति दें। जय सच्चिदानंद। दाक्ष, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, हे दादा दादा भगवान, हमें आए बच्चे हमें आपके बच्चे दिल के हैं सच्चे, दिल के हैं सच्चे सच्चे, फिर भी हैं कच्चे, फिर भी है भी है कच्चे, कच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे अच्छे अच्छे। ओके, जय सच्चिदानंद। ओके चिनाय, इतना दिन के बाद आए तो तीनों गोल में और दादा सेपरेशन थैंक यू, बोलो, आप बोलिए। थैंक यू। शुद्धात्मा दादा आप अलग हो दक्ष लगे। हे शुद्धात्मा दादा आप परमानेंट तो दक्ष बता दिए। हे शुद्धात्मा दादा आप रियल हो दक्ष रिलेटिव है। चिनाय, हे શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે જુદા છો, મુલાકાત જુદી છે। हे શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો, મુલાકાત ટેમ્પરરી છે। हे શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે પરમાનન્ટ છો, મુલાકાत ટેમ્પરરી છે। जय सच्चिदानंद। ओके, तो चिनाय, ये कितना दिन से बाद आप आए? तो 10-12 दिन हो गया। तो तीनों गोल में कैसा रहा, और टाइम वेस्ट एंड इन्वेस्ट टाइम में कैसा रहा, और प्रीवियस वीक से कुछ प्रोग्रेस है कि नहीं? बोलो मोनिका। हाँ, जय सच्चिदानंद। मैंने जो प्रीवियस वीक में जो रिपोर्ट दिया था टाइम इन्वेस्ट में, उस वीक में मैंने 90% अब मेरा टाइम वेस्ट किया था। बट मैंने इस वीक में मैंने थोड़ा प्रोग्रेस किया था, और साथ ही मेरे तीनों गोल में कॉन्सेंट्रेट भी किया था। सुबह में जल्दी उठ के पढ़ाई कर रही और 2 hours एक्स्ट्रा स्टडी भी किया था।
क्योंकि क्वार्टरली एग्जाम्स चल रही थी तो उस समय मैंने टाइम इन्वेस्ट किया था और मैं अभी भी वही कंटिन्यू कर। छुट्टी आपको सोचना पड़ेगा। खुशी हाँ, मैंने मेरे तीनों गोल में स्टडी में मैंने टाइम इन्वेस्ट किया था, हेल्थ में मैंने टाइम इन्वेस्ट नहीं किया और दादा के ज्ञान में मैंने 10% ही संसाधन पूरे किए थे और प्रीवियस वीक से मुझे स्टडी में मैंने टाइम और इन्वेस्ट किया है इस बार। तो भाई अब एग्जाम खत्म हो गए? नहीं, वेडनेसडे खत्म हो गई। नेक्स्ट वेडनेसडे खत्म जो ओके ओके। श्रेया आपका क्या आज कैसा रहा? मेरा मेरा 3 गोल में स्टडी में मेरी एग्जाम 4th को चालू होने वाली है, तो मेरा फ्री टाइम में मैं एक्स्ट्रा स्टडी करती हूँ और सब रिवीजन कंप्लीट करती हूँ। हेल्थ में मेरा सूर्य नमस्कार रह जाता है और सुपर ब्रेन योगा मैं कर लेती हूँ और दादा के ज्ञान में मैं संसाधन करती हूँ, फुल करती हूँ। ओके, सूर्य नमस्कार का क्या प्रॉब्लम है आपको? सूर्य नमस्कार क्यों करते हैं मालूम है आपको? जरा कल बताना, कल नहीं मंडे। दक्ष जय सच्चिदानंद। मैंने मेरी हेल्थ में और सुपर ब्रेन योगा में ए है और मैं अभी मेरे एग्जाम है तो कल मेरा मैथ्स का पेपर है तो मैंने उसकी पूरी तैयारी कर ली है। ओके, वेरी गुड। ओके शैलेश दादा, अभी हम कल से नया टॉपिक शुरू किया है। ये तो थोड़ा स्टेटस ले लेता है और इम्पोर्टेंट थिंग का खुशी और हैप्पी और अनहैप्पीनेस। तो कल से स्टार्ट किया था। तो श्रेया आपका नोट्स है उधर? क्या बोला था बिहारी दादा ने, क्या बोला था कल? बिहारी दादा ने ये बोला था कि दुख का मतलब ये है कि उसके दुख का मतलब ये है कि हमारा सॉल्यूशन होता है और जिसका सॉल्यूशन हमारा नहीं होता है वो दुख नहीं कहते। और जो हमको नहीं मिलता है, जो सपोज हमको कुछ चाहिए होता है और हमको नहीं मिलता है तो वो दुख होता है। फिर थोड़ी देर के बाद हमको मिल जाता है तो हमारा दुख वहां से निकल जाता है। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। और दक्ष होमवर्क क्या था मालूम है? हाँ, कि अपन किस किस चीज में खुश रहे हैं और किन किन चीज में सैड। हाँ, सैड नहीं बोलो, सैड तो इंग्लिश वर्ड है। दुखी। थैंक यू। अब बोलो क्या हो आज, क्या था ऑब्जर्वेशन, क्या था आपका? आज मैं सैड जब हो गया था कि जब मैं मंदिर नहीं जा पाया था तब मैं सैड हो गया था आज। और हाँ, और मैं हाँ और मैं एग्जाम में हैप्पी जब हो गया था कि जब मैम ने इजी इजी क्वेश्चन पूछे थे। ये तो हैप्पी हुआ कि सैड, आप खुशी हुआ कि दुखी हुआ? तो मैं खुश हो गया था। वेरी गुड। आज दुखी नहीं हुआ? दुखी हुआ। बोलो बोलो जल्दी जल्दी। एक बार आज मम्मी को कहीं बाहर जाना है और मैं बोल रहा हूँ कि मैंने बोला था कि मुझे भी जाना है, बस मैं बाद में मान गया था कि आप चले जाओ। वेरी गुड। श्रेया मुझको दुख तब लगा था कि जब मेरे मैथ्स के क्लासेस में मुझको ज्योमेट्री पता नहीं चल रहा था और सुख तब हुआ था जब मेरे बायोलॉजी में अच्छे मार्क्स है। और सुबह से अभी तक क्या कैसा कितना रहा? 50-50, 60-40, हैप्पी सैड? 50-50। 50-50। दक्ष आपको? 50-50। 50-50। ओके। हिताक्षी आपको?
मेरा 70-30. 70 unhappy? No, 70 happy and 30 unhappy. बट आप हिंदी में बोलो आप लोग. We need to use अपना लैंग्वेज का. ओके हम भी भूल जाते हैं. ओके तो टुडे से सेकंड डे तो थोड़ा इंट्रोड्यूस करो और बाद में हमको एक मेडिकल क्वेश्चन भी है कि हैप्पी होके, आप तो डॉक्टर हैं, तो हैप्पी होके बॉडी में क्या फर्क पड़ता है, इंटरनल एक्सटर्नल, और दुखी होके क्या होता है. पहले आप थोड़ा इंट्रोड्यूस करो आपके मुद्दे, आप योर व्यू पॉइंट, एंड बाद में मेडिकली थोड़ा बच्चे को बताना. तो ये जो हैप्पी अनहैप्पी की बात कर रहे हैं, सुख और दुख जिसे हम हमारी भाषा में बोलते हैं, तो उसके 2-3 लेवल्स लेते हैं हम. एक जो लेवल है मन, जो हमारा मन है, खास तौर पे मन या तो अंतस्करण है, उसके लेवल पर हमें सुख या दुख लगता है. दूसरा है हमारे हार्ट के लेवल पर, यानी हृदय को, दिल को जो ठंडक या सुख या दुख पहुंचता है. और तीसरा जो है वो हमारे रियल के भाग में, आत्मा के भाग में जो हमें समझ में आता है. तो ये मन रिलेटिव, मैंने संजोगों की जो बात है उसमें ज्यादातर हमारा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, मैंने मन और ईगो या तो अंतस्करण, उसमें उसके ऊपर असर पड़ता है उसका. और जब मन के अनुसार होता है, मन को इच्छित वस्तु प्राप्त होती है, अपनी अपेक्षा अनुसार मिलता है, तो वो सुख लगता है, उसको सुखी होता है. अपेक्षा अनुसार नहीं मिलता है तो उसको दुख लगता है. मान लो हमें कुछ चीज पसंद है, चाहिए, हमें न मिले, पापा मम्मी न दिलवाए, तो हम, मन को दुख लगेगा, और दिलवा दिया तो मन को सुख लगेगा. या तो हमारे मार्क्स अच्छे, दूसरों से अच्छे है, सो मन और बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये रिलेटिव सुख दुख में एक दूसरा जो भाग है वो कंपटीशन और कंपैरिजन का है. हमको सुख है, हमारे पास अच्छा फोन है, मगर हमारे मित्र के पास तो अभी नया आईफोन जो 14-15 निकला वो आ गया, तो कंपैरिजन में हम दुखी हो जाएंगे कि भाई उससे मेरे पास बहुत कम है, या तो मेरे से उसके पास ज्यादा है. सो ज्यादातर मनुष्य का मन और अहंकार कंपैरिजन और कंपटीशन से चलता है. तो दादा भगवान ने एक बहुत बढ़िया बात बताई थी कि रेसकोर्स में सब घोड़े दौड़ते हैं, उसमें पहला नंबर सिर्फ एक का आता है, दूसरे सब तो वो थक जाते हैं, और पहले नंबर वाले को भी तनाव होता है कि कब दूसरा आगे निकल जाएगा. स्पर्धा करनी है तो खुद से करो अच्छे होने के लिए. स्पर्धा करनी है तो अपनी गुणवत्ता या अपनी स्किल्स या अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए कर सकते, मगर जब चीजों की स्पर्धा करते हैं तो फिर हम ज्यादातर सुख के बजाय दुख मोल के लेके आते हैं. सो ये रिलेटिव की बात कर रहा हूं मैं, रिलेटिव संजोगों की. और आप लोग जो 50-50, 30-70, 70-30 जो भी कुछ बोल रहे हैं, वो ज्यादातर मन के लेवल पर आपको सुख या दुख लग रहा है. और उसको तो समझ से सही भी कर सकते हैं. यदि अपने पास समझ सही हो गई तो वो हम ज्यादातर सुख और बहुत कम दुख में आज आ सकते हैं. दूसरी चीज है कि हमारे दिल को, हृदय को कब सुख पहुंचता है. आपको कोई चीज मिल गई, वो तो थोड़ा टाइम देती है, फिर आपके फ्रेंड के पास आपसे अच्छा फोन है तो वापस दुखी भी हो जाते हैं. मगर हृदय को कब सुख मिलेगा, तो दादाजी ने बोला कि सुख की दुकान जब आप निकालेंगे, मैंने आपके मन वचन का ऐसे औरों को जब सुख होगा तब आपके पास सुख ही बचेगा. आपके मन वचन का ऐसे औरों को दुख होगा तो आपको पहले दुख होगा. मन वचन का ऐसे औरों को सुख कैसे दिया जाए, तो बोले हेल्पिंग एटीट्यूड, ऑब्लाइजिंग, कि भाई मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ,
या मन से सुख दे, वाणी से सुख दे, काया से सुख दे, किसी का धक्का खाया, किसी का काम किया, कुछ भी किया, तो जिसमें औरों को सुख मिलता है उसमें पहले खुद को, हृदय को सुख मिलता है। इवन पशु पंखी को भी हम चारा देते हैं, चण देते हैं, पानी देते हैं, तो अभी हमें सुख मिलता है। तो ये दादाजी का एक बड़ा प्रिंसिपल है कि इसलिए हम नक्की करते हैं कि सुबह में कि मेरे प्राप्त मन वचन का ऐसे किसी को दुख न हो, मेरे प्राप्त मन वचन का ऐसे सभी को सुख हो। अच्छा, तीसरी चीज जो मैंने बताई कि जब आत्मा के, मैं अभी बोला ना प्रेयर दक्ष ने, भले आपको आत्मा का ख्याल पूरा नहीं है मगर आप जानते हैं, हम सब जानते हैं कि भाई अंदर रहे हुए हे दादा भगवान आप रियल है और शैलेश रिलेटिव है, हे शुद्धात्मा भगवान आप परमानेंट है, शैलेश टेम्पररी है। तो जब हम शुद्धात्मा दादा भगवान अंदर रहे, शुद्धात्मा दादा भगवान की ओर जाते हैं, तो सुख और दुख से ऊपर उठ के हमें आनंद मिलता है, जहां पर उसका कोई काउंटर पार्ट नहीं है। सुख का तो काउंटर पार्ट होता है दुख, और दुख का काउंटर पार्ट होता है सुख, मगर आनंद में यूनिलैटरल है, उसका कोई काउंटर पार्ट नहीं है। सो इसलिए अंत में हमें आत्मा का आनंद चाहिए, और व्यवहार में हमें मन वचन का ऐसे औरों की हेल्प करनी है, औरों को सुख देना है, तो वो हमें परमानेंट लास्टिंग हृदय को सुख देगा। तो ये 3 बात मैंने बताई। आप लोग जो ज्यादातर बात कर रहे हैं तो वो तो मन खुश हो गया, मन नाखुश हो गया, उसकी बात कर रहे हैं। और वो मन की खुशी नाखुशी टेम्पररी भी है और दूसरों के ऊपर आधारित भी है, सो पराधीन भी है, पर है और पराधीन है। सो उसको फिर भी भले रहा, मगर उसको समझ से हम सही ढंग पे ला सकते हैं। अच्छा, उसमें कुछ क्वेश्चन है कि अभी अपना बॉडी के इफेक्ट तो बताएगा। एक क्वेश्चन किसी को, मोनिका? आप हाँ भी बोलिए। हाँ बोलिए। आपने ये कहा था कि जो भी हम समझा देंगे तो वो सुख होगा, तो किस तरह से समझाना और क्या करना है उस समय सुख के वो लिए? मन को, मन जब सही समझ से मन समझ जाता है, अंदर अंतस्करण समझ जाता है सही समझ से, तो उसको तुरंत ही सुख मिलता है। और अंतस्करण जब गलत समझ से चलता है तो उसको दुख मिलता है। एग्जाम्पल दो ना। हाँ 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 हाँ, मैं दे रहा हूँ। सही समझ का देखो 2 चीजें, कि कोई चीज हमें चाहिए तो मन बताता है कि मुझे क्यों नहीं दिलवाते, मुझे तो चाहिए ही चाहिए। तो वो जब तक मिलती नहीं वो तब तक दुखी हो जाता है। मगर हम उसको समझाए सही समझ से कि भाई हमें सुख के लिए चाहिए तो सहज रूप से मिलेगा तो हम उसको इस्तेमाल करेंगे। जब तक सहज नहीं मिलता है तो हम उसके लिए कोई झगड़ा या तो कोई जिद नहीं करेंगे, या तो उसके बिना हमें चल सकता है। उससे भी आगे वाली चीज है कि भाई मुझे लेने में नहीं, मुझे औरों को के साथ बांटने में ज्यादा सुख है। तो ऐसा जब मन को मैं समझाऊंगा तो मन चीज लेने के लिए नहीं मगर बांटने के लिए तैयार हो जाएगा, तो उसमें उसको अधिक आनंद मिलेगा। आपकी सिस्टर से आपको कुछ वस्तु चाहिए, मन जिद करता है, मगर जब आप मन को समझा देंगे कि नहीं नहीं मुझे तो मेरी चीज सिस्टर को देने में ज्यादा आनंद है, तो फिर मन बांटने के लिए तैयार हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा, उसको फिर चीजों की जिद नहीं रहेगी। उसी प्रकार से हर एक चीजों में यदि हम उसको सही समझ से समझाएं। दूसरा एग्जाम्पल देता हूं, जब आपको पापा मम्मी और किसी का कोई काम सौंपते तो आपको लगता है कि नहीं नहीं नहीं, नहीं मुझे नहीं करना है, अभी क्यों मुझे इतना काम देते हैं। मगर यदि आपने पलट दिया कि नहीं मुझे तो सुख की दुकान खोलनी है, मैं तो सबको हेल्प करना, ओब्लाइजिंग और हेल्पिंग करने में मुझे पहले आनंद होता है, तो फिर आप खुशी खुशी सबका काम करोगे। आप कोई काम सौंपेगा तो राजी हो जाओगे, नहीं मुझे सेवा की तक मिली, मुझे काम करने की तक मिली, उसमें पहले मेरा फायदा है।
तो ये सही समझ जब आ जाती है तब कोई भी चीज में दुखी नहीं होते हम, सुख होता है हमें। हाँ तो अभी ये इफेक्ट बोलो बॉडी में। हाँ बोलता हूँ। मुझे तो ये बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया कि मैं किसी को हेल्प नहीं करता हूँ, पहले मुझे खुद को हेल्प होती है। जब से मैं नक्की करता हूँ किसी को काम या हेल्प करने का, पहले मुझे आनंद होता है, मेरी सेल्फी अच्छी आती है, मेरी ऑरा बॉडी अच्छी होती है, कई फायदे पहले मुझे होते हैं। सो मैं किसी को सुख नहीं देता, पहले खुद मुझे सुख हो जाता है। ये जब अनुभव में आया, सही समझ हो गई, तो फिर बहुत ज्यादातर सुखी सुख रहता है। अच्छा, बॉडी की जो बात की, तो पहले तो हम आपको समझ में आए ऐसी बात करें ना। जब आप राइट। किसी को सुख देते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, तब आपकी सेल्फी अच्छी आती है क्या? आईने में नहीं आपका मुंह अच्छा दिखाई देता है क्या? नहीं नेचुरल स्माइल होती है? क्या नहीं बोले? नहीं समझ में नहीं आया मेरे। क्या बोले? सेल्फी अच्छी नहीं आती है, ऐसा बोलते हैं आप? जब आप किसी को सुख देते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, तब आपका मुंह नेचुरली स्माइलिंग होता है कि नहीं होता है? होता है। हाँ, तो फिर सेल्फी अच्छी आएगी कि नहीं आएगी? मतलब आएगी आपकी फोटो, चलो सेल्फी छोड़ो, फोटो अच्छी आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। हाँ, बिना बिना मेकअप भी आपका मुंह अच्छा लगेगा। कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। तो कहने का मतलब है कि पहले हमें पॉजिटिव इफेक्ट होती है, और उसको मेडिकल की भाषा में समझे तो रिसर्च से लोगों ने ये प्रूव किया है कि जब हम किसी को सुख देते हैं, किसी की मदद करते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड में है, तो हमारे ब्रेन में सीरोटोनिन वगैरह केमिकल्स उत्पन्न होते हैं, जो पूरे बॉडी को पॉजिटिव करते हैं, हेल्थ में भी मदद करते हैं। पॉजिटिविटी से रोग ठीक भी हो जाते हैं, रोग होने नहीं देते हैं, और नेगेटिविटी से रोग होते भी हैं। अच्छा, इससे आगे चलना है तो लोगों ने फंक्शनल एमआरआई, आपने सुना कि नहीं सुना मुझे मालूम नहीं, फंक्शनल एमआरआई आप गूगल करना, वो मेडिकल की बड़ी अल्ट्रा सोफिस्टिकेटेड मशीन है जो हमारे ब्रेन का सब स्टडी करते हैं, और उसमें पता चलता है कि भाई औरों को सुख देने से, ओब्लाइज करने से फंक्शनल एमआरआई में हमारे ब्रेन में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस होते हैं, और किसी को दुख दे, किसी के साथ क्लेश हो गया, तो फंक्शनल एमआरआई में नेगेटिव इफेक्ट भी आती है। उससे आगे एक दूसरा मशीन है, स्पेक स्कैन बोलते हैं उसको, SPECTS। तो स्पेक्ट स्कैन से भी लोगों ने ये उसका डिटेल है, सिंगल पॉजिट्रॉन एमिशन कंप्यूटराइज टोमोग्राफी। ये सब आप गूगल कर सकते हैं। तो उसमें भी ये देखा गया कि हर एक चीज की अपने ब्रेन पर भी इफेक्ट होती है। इससे आगे चलते हैं तो ये ब्रेन हमारा नर्वस सिस्टम से पूरे बॉडी के साथ जुड़ा हुआ है। सो हर एक पॉजिटिव चीज की इफेक्ट भी पूरे बॉडी के हर एक सेल्स पर और जीन्स पर भी होती है, और एंडोक्राइनल सिस्टम, हार्मोनल सिस्टम होती है, जिसमें भी इसके सब चेंजेस होते हैं। सो नटशेल में, संक्षिप्त में, हर एक पॉजिटिव या नेगेटिव चीज का हमारे न केवल बॉडी मगर बॉडी माइंड सोल तीनों इंटरकनेक्टेड है, तीनों पर इफेक्ट होती है। कुछ कुछ समझ में आया? हाँ साक्षी बा, क्या समझ में आया? क्या असर होता है शरीर में? श्रेया, नहीं सुनाई देता? ओके। अव्यय, क्या फर्क होता है? अब क्या शरीर में असर होता है? क्या बोला शैलेश दादा ने? कैन यू हियर मी? उन लोगों के लिए कठिन हो गया ऐसा लगता है ये। हाँ, इसलिए नहीं, मोनिका कम ऑन, यू कैन से सम। हाँ वेरी सिंपल जैसे बताया ना। हाँ, जब हम किसी को सुख देते हैं तो हमारी बॉडी में सेरोटोनिन हार्मोन प्रोड्यूस होता है, और जिससे बॉडी में पॉजिटिव चेंजेस आते हैं, और हमारा ब्रेन जो है, नर्वस सिस्टम पूरी बॉडी में कनेक्टेड है। तो इसलिए वो जो भी हम कुछ भी करते हैं तो पहले ब्रेन पर अफेक्ट होता है, और जिसके कारण सेल्स पे और जीन्स पे भी वो
इफेक्ट दिखाता है, और जो भी पॉजिटिव है वो भी इफेक्ट दिखाता है। और जब हम पॉजिटिव रहते हैं और किसी को ऑब्लाइजिंग नेचर में रहते हैं तो एंडोक्राइन हार्मोन्स इजीली वर्क करते हैं, और साथ ही ब्रेन भी एक पॉजिटिव होता है। Oh, very good, very good. But उसमें एक्सेलेंट very एक्सेलेंट। excellent, yeah. Short में बोलो क्या असर होता है मैं without any medical terms? खुद को सुख मिलता है। शैलजा ने बोला ना कि पॉजिटिविटी, इम्यूनिटी सिस्टम अच्छे होते, डिजीज नहीं आते। और नेगेटिव में क्या होता है? नेगेटिव में हमारी जीन्स पे असर होती है और ब्रेन पे असर होती है, और हम जो भी काम करने के लिए जाते हैं उस समय हमारा ध्यान भटकता है। डिजीज भी आता है, हाँ, हेडेक आता है, वो आता है, वो आता है। और आप तो डॉक्टर साहब आए, हिताक्षी आज डॉक्टर साहब आए तो आपके oh no, हिताक्षी, कैन यू हियर मी? दादा आपकी आवाज नहीं आ रही ठीक से। आपका प्रॉब्लम है, आप सुन सकते हैं? कैन यू हियर? थोड़ी थोड़ी आवाज आ रही है। ओके। आपके कंप्यूटर का वॉइस एडजस्टमेंट देख लीजिए हिताक्षी बा, कंप्यूटर में वॉइस बढ़ा दीजिए यदि हो सकता है तो। मेरी आवाज सुनाई देती है आपको? हाँ आपकी सुनाई देती है। ओके, नो, वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपके लिए हम क्वेश्चन पूछते हैं। और टायर्ड बहुत हो जाते हैं शैलेश साहब, और लिख हिताक्षी बा टायर्ड और हो जाती है? लिख बहुत लिखना होता है तो टायर्ड हो जाती है, और स्कूल से आती अच्छा, है तो टायर्ड हो जाता है। तो क्या उसको पॉजिटिविटी डालो, उसको क्या करेगा पॉजिटिविटी? हाँ वो दो चीज है कि एक, जो चीज हम आनंद से करते हैं कि नहीं मुझे करना है, मुझे और करना है और इसमें मुझे आनंद आता है, मैं आगे बढ़ती हूँ, तो उससे आपको एक नया उल्लास मिलेगा, नई एनर्जी मिलेगी। और एटलीस्ट मेंटल मानसिक लेवल पर तो आप बहुत एनर्जेटिक रहोगे। आप बॉडी 7 8 10 घंटे के काम के बाद मान लो कि थोड़ी थकान महसूस करती है तो वो ठीक बात है, मगर वो तो थोड़े आराम के बाद तुरंत फ्रेश हो जाती है। और आपकी उम्र में तो बॉडी की थकान भी इतनी नहीं होनी चाहिए। तो ये एक चीज है कि एक मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि हमारे घर पे कोई नापसंद गेस्ट या मित्र आ जाए तो हमें कितना बोझ बन जाता है, कोई काम कितना भारी लगता है। और हमारी मनपसंद फ्रेंड या गेस्ट आ जाए तो कोई भी काम हमें डिफिकल्ट नहीं लगता, हम उल्लास से सब कुछ कर लेते हैं कितना भी काम हो। तो माइंड जहाँ पर क्या बोलते हैं कि नेगेटिव है तो पूरे बॉडी को थकान या लो एनर्जी लगता है। माइंड यदि पॉजिटिव है तो पूरे बॉडी को यार काम में भी थकान भी नहीं या कम लगेगी और आनंद भी बढ़ जाएगा, एनर्जी भी बढ़ जाएगी। हाँ ठीक है हिताक्षी बात, तो जरा ये प्रैक्टिस करना, तो मंडे बताना कि इसके फायदा हुआ कि नहीं। ओके। प्रेशर होता है तो ये प्रॉब्लम होता है, हाँ आपको बहुत प्रेशर है स्टडीज का, तो स्टडीज का प्रेशर नहीं रखने का है। ओके, यही सच्चिदान। ओके, हाँ फॉर ये वीकेंड में जरा देखो कि किधर किधर सारा दिन सुबह उठ के शाम तक किधर किधर खुशी होती है, किधर दुखी होता है। ओके, जरा ऑब्जर्व करना और मंडे सबको बताना। ओके, हाँ मालूम पड़ गया सबको? हाँ, ओके, देखो सुबह से उठते तब हैप्पी होते है कि नहीं, खुशी होता है कि नहीं होता है, ब्रेकफास्ट में होता है कि नहीं, स्कूल में जाने का है करते है कि नहीं, वो सब देखो। मोनिका ना बोल दिए तो आपको तो बहुत डिजीज का, यू आर इनवाइटिंग लॉट ऑफ डिजीज। दादा सुबह उठते वक्त अच्छा नहीं लगता। नो नो, यू टू शेरदार क्या बोला, यू टू बी पॉजिटिव। आई हैव टू वेक अप, क्या करेगा नहीं, और इफ यू कैन नॉट वेक अप, वेक तो होना ही है ना, देन यू टू वेक हाँ, अप। हाँ, तो पॉजिटिव ही स्टार्ट करेगा, आई हैव टू वेक अप, आई हैव टू वेक अप। और ये जरा एक्सपेरिमेंट करो, व्हेन मंडे विल टॉक अबाउट। ओके, जय जय हाँ, सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जैसे